Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली नई गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज़। जो भी आपकी इन्वायरमेंट से रेगुलेशन लाती हैं, राइट, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस इस्टेब्लिश की गई हैं। ये गाइडलाइंस बेसिकली क्या कहती हैं कि जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, करेक्ट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स टाइमली होनी चाहिए, कोई भी स्पॉट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, जो भी अपॉइंटमेंट होगी उनको प्रॉपर स्किल्स देनी चाहिए, जो भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी उनकी पोजीशन है, उसके हिसाब से इनको रिक्वेस्टिक नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन देनी चाहिए, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ जो भी ये रेगुलेटरी बॉडीज़ है, इनकी फंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, राइट, इनके पास एडुकेट फंड्स होने चाहिए, ताकि जब ये अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट करें, जहाँ पे भी ये काम करें, वहाँ पर इनको फंडिंग का क्राइसिस ना देखने को मिले, करेक्ट। इसी के साथ साथ पब्लिक हियरिंग्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये टाइम टू टाइम होनी चाहिए एंड विद प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ यहाँ याद रखेंगे, ये जो गाइडलाइंस लॉन्च की गई है ना, ये 3 जज बेंच के द्वारा लॉन्च की गई हैं। एंड ये जो 3 जज बेंच हैं, इनको लेड कौन कर रहे हैं? इट वॉज लेड बाय जस्टिस भूषण रामाकृष्णा गवाई, राइट, जस्टिस भूषण रामाकृष्णा गवाई जी के द्वारा लेड की गई ये 3 जज बेंच, जिनके द्वारा यहाँ पर ये न्यू गाइडलाइंस लॉन्च की गई है फॉर द इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज एंड अथॉरिटीज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, which of these organization received RBI approval for payment aggregator business? पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर पेमेंट एप्लीकेशंस आपकी डेवलप की जाएंगी मर्चेंट्स के लिए टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। एंड जो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये मनी रिसीव कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो अभी रिसेंटली जसपे, जोहो एंड डिसेंट्रो, इन तीनों को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है RBI से। जसपे की बात करें, बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, जोहो की चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, एंड डिसेंट्रो की बात करें तो ये आपकी बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एक फिनटेक फर्म रहेगी। ठीक, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, जोहो, जसपे एंड डिसेंट्रो, इन्होंने RBI अप्रूवल रिसीव किया टू बी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं OECD। OECD क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इनके द्वारा अभी इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया गया फरवरी 2024 में। ठीक, एंड यहीं पे याद रखेंगे, इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 25 प्रोजेक्ट की टू बी अराउंड 6.2%।
यही अगर फिस्कल ईयर 26 की मैं बात करूं, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.5%। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यहाँ पे फिस्कल ईयर 25 में इन्होंने इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट की है वो है अराउंड 4.9% की, एंड फिस्कल ईयर 26 के लिए जो इन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है वो है 4.3% की इंडिया में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है, इन्होंने OECD के हिसाब से इंडिया 6.2% से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो नीमा शरीखानी, इनके द्वारा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड को जीत लिया गया है, करेक्ट। एंड इनको ये अवार्ड किनके द्वारा दिया गया, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि यूके में है, करेक्ट, लंदन यूके में। फिर इनकी जो फोटोग्राफ है उसका नाम क्या रहेगा, स्लीपी पोलर बियर, करेक्ट। स्लीपी पोलर बियर के लिए इनको यहाँ पे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो फोटोग्राफ है, एंड स्लीपी पोलर बियर इसका नाम दिया गया। नीमा शरीखानी ऑफ द यूके, इनको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। एंड नीमा शरीखानी वन दिस अवार्ड फॉर हिज फोटो ऑफ अ पोलर बियर स्लीपिंग पीसफुली ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा इसको ऑफिशियली 1965 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अपूर्वा चंद्रा, करेक्ट, पहली चीज। दूसरा याद रखेंगे, संजय जाजू, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ MIB। ठीक है, ये किन को रिप्लेस करेंगे, संजय जाजू ये रिप्लेस करेंगे अपूर्वा चंद्रा को, जो कि अब नए सेक्रेटरी बन गए हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, करेक्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मार्क करके चलेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं अपूर्वा चंद्र एंड संजय जाजू। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ओल्जेस बेकेंतो, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। 46 ईयर्स इनकी एज रहेगी। यहां पे आप देख सकते हैं ओल्जेस बेकेंतोव, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, 43 ईयर्स के हैं, अमानत पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किनको अभी कंट्री डायरेक्टर यहां पे अपॉइंट किया गया है, कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं, मियो ओका। मियो ओका यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर बने हैं आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इनको अपॉइंट किया गया कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगी, ये रिप्लेस करेंगी ताकियो कोनिशी को टू बी द न्यू डायरेक्टर और कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, करेक्ट। इससे पहले देखें तो मिया ओका, इन्होंने ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से एसोसिएटेड है फॉर मोर देन 18 ईयर्स। 2005 में इन्होंने ज्वाइन किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एंड बिफोर ज्वाइनिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक शी सर्व्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान 2004-05 में, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन दैट इज जीका 1998 से 2001 तक, एंड जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के लिए 2001 से 2003 तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, प्रेसिडेंट रहेंगे मत्सुगो असाकावा, हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में, एंड 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में, ताकि इंडियंस को फिट रखा जा सके एंड फिटनेस की तरफ थोड़ा रुझान लाया जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, राइट। तो किनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, वो है IRS ऑफिसर ऑफ 2009 बैच नरेंद्र कुमार यादव। ये 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं, एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिविल सर्वेंट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, वो है नरेंद्र कुमार यादव, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक। अभी रिसेंटली नीतीश, हम जानते हैं नीतीश कुमार यादव, ये आपके कौन हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, कहाँ के, बिहार के, करेक्ट।
9वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। एंड अभी रिसेंटली इन्हीं के नाम के ऊपर एक डिवाइस को लॉन्च किया गया। ये डिवाइस बेसिकली आपका क्या करता है, अलर्ट डिवाइस है ये, अलर्ट देता है फॉर नेचुरल कैलेमिटी, जैसे आपकी हीट वेव्स आ गई, कोल्ड वेव्स आ गई, फ्लडिंग आ गई, थंडरस्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक आ गया, करेक्ट। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये अलर्ट्स प्रोवाइड करता है ये डिवाइस, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इसका नाम रहेगा नीतीश। नीतीश की फुल फॉर्म देखें तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश का नाम रहेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड ये एक अर्ली अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस को डेवलप किया गया था बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी इन पटना बिहार। इसी के अलावा एक और डिवाइस याद रखेंगे जो है इंद्रावज। ये इंद्रावज बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइस है जैसे आपका नीतीश है, सॉरी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंद्रावज, एंड से सिमिलर काम करता है जो आपका ये नीतीश डिवाइस करता है, करेक्ट। ये आपका लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है इस मोबाइल एप्लीकेशन पे, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं नीतीश डिवाइस, एंड ये सिंक्ड है आपका बिहार मीटरोलॉजिकल सर्विस सेंटर के साथ। एंड हाफ एन आवर पहले लोगों को कैलेमिटीज लाइक लाइटनिंग, फ्लड, हीट वेव्स, कोल्ड वेव से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये अपना कलर चेंज कर देगा फ्रॉम ग्रीन टू रेड अगर कोई भी यहाँ पे कैलेमिटी हमें देखने को मिलती है। एंड दिस डिवाइस इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर फार्मर्स बट कैन ऑल्सो बी यूज बाय कॉमन पीपल। फिर इंद्रावाज आ जाता है, ये सिमिलर फीचर प्रोवाइड करता है टू दैट ऑफ नीतीश डिवाइस जो कि आपका बिहार में ऑपरेट होता है। चलिए नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं। तो वेटरन ब्रॉडकास्टर एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर फारूक नाजकी, इनका रिसेंटली निधन हो गया, करेक्ट। एंड एट द एज ऑफ 83 एट कटरा यूटी जम्मू एंड कश्मीर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा, इनका भी निधन हो गया अभी रिसेंटली। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रिटिश इंडियन पियर बारोनेस श्रीला फ्लैथर, इनका भी निधन हो गया। बैरोनेस मतलब फीमेल एंड बैरन मतलब मेल, ठीक है, ये मार्क करके चलेंगे। अब ये ब्रिटिश इंडियन पीर थी श्रीला फ्लैथर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। एंड यहीं पे याद रखेंगे पियर क्या होता है, ये एक ऑनर गिवन दिया जाता है टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रांट्स देम टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स विद द टाइटल बैरन मेल, बैरनेस फीमेल। एंड ये वो पहली ब्रिटिश एशियन वीमेन बनी टू बिकम अ लाइफ पियर इन 1990। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर कानूभाई देसाई के द्वारा प्रेजेंट किया गया अभी रिसेंटली स्टेट बजट। एंड ये जो स्टेट बजट रहेगा गुजरात का, इनकी हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर बजट रहेगा ऑफ 3,32,465 करोड़ रुपीस। फिस्कल ईयर 25 के लिए ये इन्हें प्रेजेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई टू पास द बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी पे पास करने वाली पहली स्टेट बन गई है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 के अंडर आता है। एंड उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई है टू पास द बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बिल नाउ विल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, एंड उनके एसेंट के बाद इट विल बिकम अ लॉ, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, तेलंगाना में अभी एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व अप्रूव किया गया, तडोबा वाइल्ड लाइफ तडोबा कवाल कंजर्वेशन रिजर्व। इसके लिए अप्रूवल मिल गया है बाय तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा, ठीक है, ये भी मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया न्यू गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज। जोहो, जसपे एंड डिसेंट्रो इन्होंने रिसीव किया आरबीआई नोट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। देन ओईसीडीज इकोनॉमिक आउटलुक रेज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 25 to 6.2%। नीमा सरीखानी इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड को जीत लिया है। देन अपूर्वा चंद्रा इन्होंने अपॉइंट किया गया है इनको एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वहीं पे संजय जाजू इनको रिप्लेस करेंगे टू बी द सेक्रेटरी ऑफ एमआईबी। देन ओल्जास बेकेनेतोव ये वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कजाकिस्तान के। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया मियो ओका को एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट बीएसडीएमए इनके द्वारा एक नोवल डिवाइस नीतीश नाम से लॉन्च किया गया जो कि अलर्ट करेगा पीपल अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज। वेटरन ब्रॉडकास्टर एंड साहित्य अकेडमी विनर
फारूक नास्की इनका निधन हो गया। चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा इनका निधन हो गया। ब्रिटिश इंडियन पियर बैरोनेस मतलब फीमेल श्रीला फ्लैथर इनका निधन हो गया। गुजरात फाइनेंस मिनिस्टर कानूभाई देसाई इन्होंने प्रेजेंट किया स्टेट बजट ऑफ 3,32,465 करोड़ रुपीस फॉर फिजिकल ईयर 25, जो कि हाईएस्ट एवर बजट है गुजरात का। उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई टू पास बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड तेलंगाना वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया तड़ोबा कवाल कंजर्वेशन रिजर्व तेलंगाना में। राइट तो दोस्तों ये तो हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने नॉमिनेट किया कितने फोर्ट्स को ऑफ मराठास फॉर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अभी 12 फोर्ट्स को मराठा के अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो एक मार्क करके चलेंगे। एंड ये किस कैटेगरी के अंडर इनको लिस्ट किया गया है? अंडर द कैटेगरी कल्चरल साइट्स। राइट एंड ये जो फोर्ट हैं ये शोकेस करते हैं मराठा रूल के टाइम पे उनकी जो मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं वो 12 फोर्ट्स। आप एक बार इनमें से गो थ्रू हो जाइए वीडियो को पॉज करके। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? ऑड्रे ऑजले। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस फ्रांस में। एंड इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ मैनी स्नो लेपर्ड्स आर देयर इन इंडिया इन जैन 2024। अभी इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक सर्वे हुआ जो था आपका SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। राइट ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का सर्वे था जो इंडिया में पहली बार हुआ। एंड इस सर्वे से पता लगा कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। राइट ऑप्शन ये तो 12 है, नहीं, ऑप्शन 5 लिख लेते हैं, 718। राइट 718 स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में। एंड ये जो डाटा कंडक्ट कराया गया ना स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया का, ये सर्वे 2019 से लेकर 2023 तक ये कंडक्ट कराया गया। और इसके दौरान पता लगा हमें, स्पोर्ट्स पर आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो कौन सा एडिशन हमें देखने को मिला था? तो 6th एडिशन हमें देखने को मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। किसके द्वारा होस्ट किया गया? किस स्टेट ने होस्ट किया? तमिलनाडु ने इसको होस्ट किया था। मेडल टैली में कौन सी स्टेट ने टॉप किया? महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया विद अ टोटल ऑफ 158 मेडल्स। 158 में से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज रहेगा। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाता है हरियाणा इन द मेडल टैली। करेक्ट। यहाँ पे एक मैस्कॉट याद रखेंगे, इसका मैस्कॉट का नाम था वीरा मंगाई। वीरा मंगाई ये आपका मैस्कॉट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन का जो कि तमिलनाडु में हुआ था। राइट एक और चीज़ याद रखेंगे, ये 19 से लेके 31 जनवरी तक हुए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने फिनिश किया सेकंड, इनका सिल्वर मेडल आया। ये रनअप रहे कहाँ पर? FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप में। आई रिपीट, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम इन्हें ये रनर रहे, सिल्वर मेडल रहा इन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 आफ्टर लूजिंग टू नीदरलैंड। एंड नीदरलैंड की यहाँ पे क्या रही? फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। इन्होंने जीत लिया है FIH 5S वीमेंस वर्ल्ड कप, करेक्ट, जो कि 24 से 31 तक हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स, अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। करेक्ट। एंड इसी दिन रामसर कन्वेंशन है उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 जनवरी को। एंड थीम याद रखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स का जो पीपल के लिए, जो प्लैनेट के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है अंडर दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम रहेगी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी रिसेंटली 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है तमिलनाडु की? वो है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट कौन सी है? तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच रिवर वॉज डाइवर्टेड फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 805 वाट का एक रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको बनाने के लिए एक अभी रिवर को डाइवर्ट किया गया थोड़ा। उस रिवर का नाम क्या रहेगा? चेनाब रिवर को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया। और ये कहाँ पे डाइवर्ट किया गया? इन द
किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस रिवर को चेनाब को यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया। फिर ये जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा ये कब से ऑपरेशनल हो जाएगा, कमीशन कब हो जाएगा, तो मई 2026 तक इसको यहाँ पे डिलीवर करने की बात की गई, इसको कमीशन करने की बात की गई। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं चेनाब रिवर, इसको डाइवर्ट किया गया फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा और इसको मई 2026 तक कमीशन करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर किया इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन टू एनएमडीसी। एनएमडीसी क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो ड्रोन है ना ये आपका मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के काम आएगा। ये ड्रोन की कंपनी का नाम क्या रहेगा, मरूथ ड्रोन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी, ड्रोन कंपनी रहेगी। इन्होंने अभी अपना एक ड्रोन जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन रहेगा, उसका नाम भी याद रखेंगे, वो मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन का नाम रहेगा ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8, ये ड्रोन का नाम रहेगा। इस ड्रोन को अभी डिलीवर किया गया टू एनएमडीसी को यहाँ पे डिलीवर किया गया फॉर वेरियस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। ये जो आपका ड्रोन है इसमें एडवांस सेंसर रहेंगे जैसे मैग्नेटोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रल मीटर, लाइडार मीटर, ये सारे यहाँ पे इसमें इनबिल्ट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड मरूथ ड्रोन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना कस्टमाइज्ड ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन, राइट, ये नेम रहेगा इस ड्रोन का, इसको डिलीवर किया टू एनएमडीसी। नेक्स्ट आ जाता है फिर ऑब्यूटरी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हरमोहन धवन, इनका रिसेंटली पास निधन हो गया। हरमोहन धवन ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम चंडीगढ़। इनका 83 की एज में निधन हो गया इन मोहाली, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज, टेक अ नोट ऑफ दिस, पूछा जा सकता है शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड टू कमेमोरेट द लाइव्स ऑफ द पीपल, जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को इन द लाइन ऑफ ड्यूटी टू द नेशन, राइट। तो शहीद दिवस, ऑल्सो शहीद दिवस याद रखेंगे महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं महात्मा गांधी जी को, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी को। एंड इस साल 2024 में हमने उनकी 76th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 2024 को। तो मार्टर्स डे बोले, सर्वोदय डे बोले या फिर शहीद दिवस बोले, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ओडिशा के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई है, लभा स्कीम। लभा स्कीम अंडर बेसिकली क्या है, एमएसपी प्रोवाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाएगा टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी आपका इंडिविजुअल यहाँ पे स्कीम के अंडर ट्राइबल कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति कलेक्ट करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, इस माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ पर लाएगा, उनको यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होगा कि जो आपके पहले क्या होता था, अब तो सरकार ले लेगी, लेकिन इससे पहले क्या होता था, मिडलमैन इस पर बहुत कम प्राइस पे उनसे इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बाय कर लेते थे, बहुत ही कम प्रोड्यूस पैसे देकर, जिससे क्या होता था जो राइट अमाउंट मिलना चाहिए था इनको वो नहीं मिलता था। तो अब लभा स्कीम के अंडर यहाँ पे राइट प्राइस मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अंडर दिस स्कीम जो प्राइमरी कलेक्टर्स होंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, वो अपने मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो उन्होंने कलेक्ट किया है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट सेंटर से, वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड ये जो सेंटर्स होंगे इनको इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे मैनेज करेगा, राइट। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और इसके लिए ये लभा स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अनिल कुमार लाहौटी, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TRAI। TRAI के नए चेयरमैन बने हैं, 3 साल के लिए बने हैं। एंड याद रखेंगे ये 9th चेयरमैन बने हैं ऑफ TRAI। TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे PD वेघेला को टू बी द न्यू 9th चेयरमैन ऑफ TRAI, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे अनिल कुमार लाहौटी, ये IR इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर है ऑफ 1984 बैच, एंड ये 3rd नॉन IAS बने जो कि यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं TRAI के सिंस 1997। TRAI की बात करें तो अब चेयरमैन कौन बन गए हैं, अनिल कुमार लाहौटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सिमिलरली नेक्स्ट याद रखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर की
HR खान की एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं वो कौन है, वो है HR खान। HR खान फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर हैं, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। इनको अभी अपॉइंट किया गया HR खान को एज देयर न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ACC ने अप्रूव किया DFS प्रपोजल टू ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। तो जस्ट गो थ्रू इट। फिर अगर मैं बात करूं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर क्या रहेगा, जयपुर राजस्थान में, एंड 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी 2023 के लिए वो कितनी रहेगी, 93। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंक 2022 में कितनी थी, 85। तो हम कह सकते हैं इंडिया में जो करप्शन का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2023 में हमें करप्शन का इंडेक्स ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है, इंडिया की रैंक रहेगी 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे, टॉप पर कौन सी रही, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है हमारी कंट्री डेनमार्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के CEO कौन रहेंगे, वो हैं डैनियल एरिक्सन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक रही 93 इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेनमार्क ने टॉप किया, एंड ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द GDP फॉरकास्ट ऑफ इंडिया बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 2024। तो देखो 2023 की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया, टू ग्रो बाय 6.7%, राइट। वहीं पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो इंडिया का एक्सपेक्टेड है 6.5% से इंडिया ग्रो करेगा। इवन 2025 में भी इंडिया 6.5% से ग्रो करने की यहाँ पे बात की गई अकॉर्डिंग टू IMF। इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखें, ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, तो हम देख रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन है, रिसेशन की बात कर रही है, तो वर्ल्ड जो ग्रो कर रहा है अभी 3.1% से ग्रो कर रहा है 2023 में, एंड 2024 में ये डाटा रिलीज किया गया है। और अगर 2025 की मैं बात करूं तो वर्ल्ड 3.2% से यहां पे ग्रो करेगा, ग्लोबल ग्रोथ जो रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। तो पहले 75 रामसर साइट्स थी, और अभी 5 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा। ये रामसर साइट्स होती हैं बेसिकली, या फिर हम बोलें तो जो रामसर साइट्स होती है ना, इनको अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यूनेस्को मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें ना, यूनेस्को आपके जो कल्चर हो गया, जो हेरिटेज हो गया, इवन अगर आपको याद हो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट भी होती है एक, उसमें क्या होता है, पुराने जो एनवायरनमेंट की जो चीज़ें, जो पुराने आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ होती है वो भी यहाँ पे लिस्ट की जाती है। तो सिमिलरली याद रखेंगे, तो जो ये रामसर साइट्स होती है ना, रामसर साइट्स बेसिकली क्या होता है, एक वेटलैंड्स का एरिया हो जाता है, या फिर एक एरिया हो जाता है जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर हम इकोनॉमी, जो इकोसिस्टम होता है उसको अपने आप ही ग्रो करने देते हैं, करेक्ट। तो इसको याद रखेंगे, जो रामसर साइट्स होती हैं डिक्लेयर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक। 75 पहले रामसर साइट्स थी, और अब 5 नई रामसर साइट्स को ऐड कर लिया गया है। इन 5 रामसर साइट में से 3 साइट्स कर्नाटका की थी एंड 2 साइट्स तमिलनाडु की थी। इनको अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई हैं, 80 हो गई हैं, याद करके चलेंगे। नेक्स्ट NHAI, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू डेवलप अ रोबस्ट नेशनल हाईवेज नेटवर्क, एक नेशनल हाईवेज का प्रॉपर नेटवर्क बनाने के लिए, एंड उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, करेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाने के लिए, ताकि जो हाईवेज है उनको और सेफ बनाया जा सके फॉर जनरल पब्लिक। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली NHAI ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया, वो है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके NHAI ने यहाँ पर एक कमिटमेंट की, या फिर उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, ताकि जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है ना, हम उसको और बेटर करेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, द टर्म लूपस, ये भी न्यूज में था, इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड, दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री।
तीसरा, अकॉर्डिंग टू फिच प्रिडिक्शन व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर इंडिया इन फिस्कल ईयर 25-26. फोर्थ, शेफाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़, ये लोकेटेड किस स्टेट में. एंड पांचवा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मर्ट स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़. ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं. अपने कजन्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबको ये वीडियो शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.